Sir, every student came till now? Okay, we were doing atomic structure. Which part we have started? I guess spectrum, right? Yes, sir. Okay, great. Now, understand that spectrum, right, is of two types, basically. Yeah. Now understand that spectrum is of two types. One is continuous, other is discrete or discontinuous. Still the students are coming. अभी लेके आ रहा हूँ, सब लेके आता हूँ, बताता हूँ स्पेक्ट्रम होता क्या है. शुरुआत से शुरू करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, बस जस्ट दे रहा हूँ क्या है. Now continuous spectrum is always a band spectrum. I have a band, and this continuous spectrum consists of line and band. Getting it? Now I have discontinuous band also. I can have discontinuous line also. Now we will be doing what is like continuous spectrum, what is like discontinuous spectrum in detail. Now what is spectrum? Now understand that spectrum was lot of energy radiation on a suitable medium. That particular thing is known as spectrum. You tell me, for white light, you can have a white paper to visualize it, right? Yes, for white light, you can have a white paper on which you can see the lights, correct? With your, yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Great, great. And for the light or the energy radiation which we cannot see, like X-rays, gamma rays, ultraviolet, infrared, micro, radio, for that we can use photographic plate. Now, photographic plate, I told you, is a plate on which any light radiation falls, it produces a black spot over there, right? Now, understand. We'll understand what is spectrum, how it forms, what exactly the conditions are. So, shall I rub this? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now, understand spectrum, right? Now, I told you I'll take a prism. Right? Last class also we have taken the same thing. Now understand that I am passing certain energies in that. I have taken energy 1, E1, E2, E3, E4, E5. Let's say E1 energy was 2 electron volt,
E2 was 4 electron volt, E3 is 6 electron volt, E4 is 8 electron volt, E5 is 10 electron volt. Tell me, I told you whenever a light radiation or any radiation is passing from a less denser medium to a more denser medium, then what will happen? The light bends towards the normal. Yeah, towards the normal. Now you tell me, this bending is directly proportional to Energy. Energy. Now tell me, which will have the highest bending here? E5. E5. Now understand, because they have difference in bending. They have difference in bending. These energy radiation will get dispersed like this. They will get separated. After it gets separated, it again undergo a bending like this. And I just keep a photographic plate. Let's say this energy radiation is falling here, I'll get a line here. This energy radiation is falling here, I'll get a line here. This energy radiation is falling here, I'll get a line here. Energy radiation falls here, I get a line here. I'll get a line here. Agreed? Now tell me, what spectrum I have here, line or band? Line. Line. Very good. Give me a minute. Okay. Sagar Patil. You don't have your Zeal ID? From admin, sir. From paid. Let me see. Okay. Now listen, everyone. So is it a line spectrum or a band spectrum? Line spectrum. Line spectrum. So I'm getting a nice line spectrum. Is it continuous or discontinuous? Does it have Discontinuous. Discrete. Continuous. So I Discontinuous. Discontinuous. सर लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि कितना मतलब कितना वाइडली डिस्पर्स हुआ है. अगर मैं शीट को पीछे कर दूंगा तो फिर बैंड स्पेक्ट्रम बन जाएगा. हाँ, I'll tell you everything. You'll come to know exactly कि क्या होगा क्या नहीं होगा. 1 second, right? तो अभी इसको हटाओ. इतना समझ में आया? Yes, sir. हाँ sir. Very good. Now listen. Now listen to it properly. क्या है क्या नहीं. Listen. मैंने एक और experiment किया. Like I have done one more experiment here. In that experiment, I have taken a lot of energies. Now understand that that energy has energy of E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, and E10. Getting it? Now the energy E1 is, let's say, 1.01 electron volt, 1.02 electron volt, 1.03 electron volt, 1.04 electron volt, 1.05 electron volt, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.1. Tell me again. Now the difference in these energies is very high or very less? Very less. Very less. Now the Very less. difference in the bending will be less or high? Less. Now understand. These all energy pass through it. Now the difference in the bending is very less. So they'll again get dispersed. And they're falling. Now I'm just plotting these energy radiation on a spectrogram, that is a suitable medium. Now you tell me, which will have the highest bending? E10. E10.
E10. Acha, E10. E9 will have slightly less bending, right? Yes. Sir. Yes. E9 will just overlap over E10 like this. Yes. Yes, sir. Get overlap over this. Yes, sir. Yes. E7, E6, E5, Yes. E4, E3. E3, E2, E1. Now tell me what I got. Band. Band. Band is continuous or Continuous. Continuous. that spectrum as now. Continuous. Band spectrum. Continuous what? Band spectrum. Band. You understood that? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. In another experiment, I did the same thing. I have taken energy 1 to energy 10, where the energies are from 1.01 to 1.1, the same energies. In plus, I have energy 11 to energy 20. The energies are from 2.01 electron volt to 2.1 electron volt. पहले वाले में सब ओवरलैप इसलिए नहीं कर रहे थे बेटा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था. जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो डिफरेंस इन बेंडिंग ज्यादा होगा ना. अगर डिफरेंस इन बेंडिंग ज्यादा होगा तो डिफरेंट स्पेस पे बेंड करेंगे. जब डिफरेंस इन बेंडिंग कम होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर बेंड करेंगे, लाइक लाई करेंगे. नाउ अंडरस्टैंड दैट. अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी? E20. 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 अच्छा, उसके जस्ट ऊपर कौन सा होगा? E19. E19. अब तो चलता रहेगा. चले I will get a branch. I will get a branch of E11 to E20. Any doubt? No, sir. Sir. Now just tell me, what about the bending difference in E11 and E10? The energy difference is very high. Yes, sir. Yes, sir. Bending difference will be higher or lesser? Higher. 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 So, when I say that, it will lie by some gaps. There will be some gaps. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This band will have how many energy radiation? 10. Band is continuous. Yeah, it is discontinuous. What's discontinuous? What is that? Band is continuous. Exactly. Discontinuous band. So now you got a feel of band, this spectrum, right? What a band spectrum, what is line spectrum? You got the feel, correct? Yes, sir. Will there be any difference in darkness of the band? No, not much because AG only is coming out. If the सर energy मेरा is अभी भी high, वाइड some आउट है. हाँ? सर हर सारे एनर्जी लेवल्स भले कितना भी छोटा गैप हो अलग अलग एंगल से बेंड कर रहे हैं. अगर आप शीट को बहुत पीछे रख दोगे तो फिर ये बैंड स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा. Now understand one thing. This is just an example. If I want to take energies, right, so I'll be taking 1, then 1.00001. So it'll be like more or less continuous only. यस सर बट आप जितना दूर कर दोगे तो फिर आप जितना दूर करोगे उतना ज्यादा सेपरेशन बढ़ जाएगा ना लाइंस के The बीच. thing is, they have tendency to overlap, right? Suppose they started overlap in your prism itself. There's a very less energy gap, and it is not like you can keep the sheet at infinite distance, obviously, right? The energy will die off. So the main point is whenever the energies are just overlapping over each other. Understood? And obviously you have to keep the spectrogram closer to the prism, not very far. So by that virtue, you will get a continuous only. I agree. When you keep it far away, then there'll be slight gaps. Getting it? Yes, sir. But still, it is considered as what? Continue. Sir, Yes, sir. great. Yes, sir. Yeah, beta. Hey, what is white light? How many energies are there in white light?
7. Sir, 7. 7. Acha. 7. Very good. 7. 7. Now listen. I have taken a white light. When I'm passing that thing through a prism, and I'll keep a white paper, because white paper you can see that line, right? Now, when you get this spectrum here, so it is not only 7 energies. You know what? You will get a band of violet color like this. Yeah. There are infinite amount of energies. You know what? At first, I will get a band of violet color. You know what? Why I am getting a violet color band? Because downside I have dark violet, then slightly less dark violet. All the violet radiation will start overlapping with each other like this. So that means if I am getting a band, is it a single energy or there are many energies having the same color? Many energies. Many energies. You Many know what? energies. This violet color band also only will start from dark violet to light violet, and there are a lot of energy in between, and the energy difference between those energies is so less. It is so less that I am getting a band. Now, before this violet get over, you know what? Indigo starts like this. This is violet indigo. Before indigo gets over, I'll get blue. Before blue gets over, I'll get yellow. Before yellow gets over, I'll get Vidyol. सर वाई जी के बाद आता है. सर जी पहले सर वाई जी बाद पहले में. आएगा. वही लिखा देखो डायग्राम में. भावनाओं को समझो. हाँ सर. Getting it? So I have Vidyol. Now in Vidyol also, before a band over, another band starts. Tell me, is it continuous or discrete? Continuous. Yeah, it's continuous because it consists of many energies which are just overlapping together. So that is why if you club 7 colors, if you club 7 colors, you never get white. If you have your color, your postal colors are there, if you just club, you'll never get. Do you know why? Because in order to get this white color, you have to start from light violet to dark violet. You have to add all the shade of violets, then all the shades of indigo. Then if you club those things together, that means approximately infinite amount of colors, then only you will get white. You understood what I'm trying to say? Yes, sir. And there's a wheel which you rotate, will become white. Remember 7 color wheels are there. This wheel is there. Yes, sir. When you rotate it, what will happen? Yes, All sir. the colors start mixing with each other from light to dark. It gives the impression of light to dark. So it is like clubbing of all the energy radiations. Can several bands? I didn't get it. Band spectrum will be band. Line will be line. Line matlab only single energy. Band matlab multiple energy. Yeah, 008. Tell me what happened. 008. You want to say something? Hello. अरे यार. हाँ 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 हाँ. Your voice is not audible, beta. Yeah. See, the thing is, your voice is not audible. Can you please type there? It is not at all audible. Log out. Okay. One second. One question came in chat box. Sir, when we combine red, blue, green color, it gives us white light. No.
No, it won't. Okay, shall I rub this now? Yes, sir. Yes. Great. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Ah. Sir, is this discontinuous band spectrum? Beta, this is continuous band spectrum where one band is overlapping with another band. You have read that. You read that. It's somewhere that it is not exactly 7 colors in rainbow. Hey, there are 7 colors only. From childhood onward, there were 7. Newton gave this random number. Okay. The thing is, ignore that. You understand white light will become a continuous band spectrum where I have different bands of different colors. You understood that? That's more important. And they are continuous band spectrum, not discontinuous. Because bands are overlapping each other. Now, everyone, I want to ask you, like, we have to do atomic spectrum, like hydrogen spectrum. Now, thing is, in case of hydrogen spectrum, obviously, we are dealing with hydrogen atom, right? You tell me, what are the energy levels of hydrogen atom? Energy 1, energy 2, energy 3, energy 4, energy 5, energy 6, energy 7. What is the energy level? Minus 13.6. Minus 3.4. Minus 3.4 electron volt. Minus 1.5. Minus 0.85. 0.5. हाँ मतलब minus भी. 0.37. 0.27. Listen, shall I say that an electron which is there in a particular shell will absorb only those energies, whose energy difference exists between the energy levels. Those photons only will be absorbed by this electron whose energy will be equal to difference in the energy levels. Agreed or not? It cannot absorb any other energy radiation which is not equal to the difference in the energy levels. Agreed? Yes, so an electron cannot. Yes, sir. So electron cannot absorb all the energy radiation. It will absorb only some amount of energy radiation whose energy will exist in energy difference of the energy line. Tell me, if it is absorbing some energy and moving up, so will it give continuous energy or will it give only those energies whose energy is equal to the energy difference? Only those which is equal to the energy difference. Shall I say that the energy which is absorbed by the electron will be the same energy which it will emit while coming back? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Will it be continuous or will it be discontinuous? Discrete, huh? Discontinuous. Continuous. Discontinuous. Everyone agreed on that? Yes. Yes, Yes. sir. Agreed, sir. Now listen, I am just doing certain experiments with hydrogen spectrum. Okay? Now we'll listen to it exactly what happens here. So one thing is sure, those energies only will be absorbed by hydrogen atom whose energy will be equal to the difference in the energy levels. Sir, can you explain again? Yeah, why not? Why not? Tell me. Hydrogen minus 13.6 minus 3.4. In order to make a transition here, what is the amount of energy it will absorb? 13.6, 3.2. What is the amount of energy it will absorb? 10.2. That means it will absorb a photon of energy whose energy will be equal to difference in the energy level, that is 10.2. So 10.2 is the energy of a photon which it is absorbing. Now tell me, when it is coming back, how much energy it will give? 10.2. 10.2. 10.2. Suppose it is going to second level, where the energy was 1.51. Now understand that if it is going over here, right, make it like 1.5. How much amount of energy of photon it will absorb? Difference is 12.1. 12.1. 12.1. So it will absorb the energy of
12.1 electron volt. Just tell me when it is coming back, how much amount of energy it can give? 12.1. 12.1. 12.1. Acha, if the electron is here, from here to here, how much amount of energy it is absorbing? 1.9. 1.9. When it is coming back from here to here, how much amount of energy it will give? 1.9. 1.9. Yeah. Listen, everyone. Make my screen freeze by double tapping over it, and make it freeze. It is a setting of for every student that he or she can make that particular screen freeze. So if any other person is talking or answering certain things, that screen will not get fluctuate. You have to double tap and fix that screen. I have done it, sir. Pinned your video. Yes, sir. Pin video. Yeah. Yes, You I have have done to it, do sir. that setting. Yeah, you have to do that setting. Otherwise, there will be a problem. Yeah. Pin video. Yeah. You have to pin video. Can you Sir, explain? am I audible now? Yeah, you are audible, beta. Tell me. Okay, thank you, sir. Are? Sir, can you explain again? Okay, so shall I wrap this now? You understood one part that the amount of energy absorbed will be the amount of energy given. Sir, Yes, sir. sir, Yes. sir, my video was lag. Can you explain once again? Listen, at what time you will get free? Acha, this part, no? Beta, this part only, no? Yes, sir. Listen. Only this. I said, whenever any electron is making a transition from lower level to higher level, it will absorb only those energies which is having energy equal to the energy difference of the energy levels. Okay, sir. Okay. Now, if this electron will absorb 10.2 electron volt to make a jump upward, and when it is coming back, same amount of energy will be released. If it is making a transition to this shell, it is gaining 12.1 electron volt. While coming back, it will liberate 12.1 electron volt. From making a transition from this to this, it is gaining 1.9 electron volt. From here to here, it will lose 1.9 electron volt. That means the amount of energy absorbed will be equal to the amount of energy liberated, because electron has fixed energies in different energy levels. Agreed? Yes, sir. Yeah. That was Thank the you, point. sir. Yeah. सर इलेक्ट्रॉन के नीचे आने की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी ना? इलेक्ट्रॉन के नीचे आने की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अरे होंगी ना? ऊपर जाने की भी मल्टीपल, हाँ वैसे नीचे आने की मल्टीपल पॉसिबिलिटी. We'll do that. Wait. We'll do everything in excess, like in detail. Just wait. Now understand one thing. तो एक चीज हमको समझ में आई, energy absorbed will be equal to energy gain. Oh, lost. Right. Now there are two types of spectrum. One is emission spectrum. Other is absorption spectrum. Now, what will happen in emission spectrum? What will happen in absorption spectrum? We'll do that. Now listen, what I'm doing here, I have a hydrogen gas sample. I have a hydrogen gas sample. So I have hydrogen atoms. Now if I have hydrogen atoms, what I'm doing, I'm just burning or heating that hydrogen atom. Now what will happen? If I'm giving a lot of heat to hydrogen atoms, so different atoms will absorb different heat. By absorbing different heat, the electron will make a transition from lower level to higher energy levels randomly. So after heating this sample of hydrogen, I'm giving heat to it. The electrons in the hydrogen atom will make a transition from lower energy level to higher energy level. Hey, board visible नहीं है? सब विजिबल है सर. Visible है, sir. Visible है. अरे यार. सर मुझे विजिबल नहीं है.
अरे बोले बेटा। Okay. Now, what I'm doing? Sure. लिखता हूँ. Now listen, I have hydrogen atom here. I'm just providing heat to it. जब मैंने इसको हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन से नीचे शेल से वो रैंडमली ऊपर गए. उसके बाद क्या किया, मैंने हीट को कट ऑफ किया. When I cut off the supply of heat, what will happen? Electron will come from लोअर स्टेट पे आ जाएंगे Yes, वापस sir. ग्राउंड स्टेट पे. एक्साइटेड से लोअर स्टेट में आएंगे. जब मैंने They'll emit photons. हाँ वेरी गुड. जब मैंने हाइड्रोजन गैस को हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन सैंपल में से नीचे से ऊपर गए रैंडम. फिर मैंने उसको हीट को सप्लाई को बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऊपर से नीचे आ रहे हैं. जब ऊपर से नीचे आएंगे थोड़े टाइम के बाद तो क्या करेंगे? What they'll do? They will emit photons. हीट रिलीज करेंगे. They will emit Emit photons, heat. right? Photons. When they emit Oh photons, yeah, photon. after the supply of heat is stopped, I will get series of photons. And passing this photon through a prism. Obviously, all these energy radiation will undergo bending, and I will get a spectrum. That spectrum will consist of various energies like this. Now, what are these energies? These are the energies which are liberated by Hydrogen. So shall I say that the hydrogen atom gets excited after absorbing energy. These excited hydrogen atom will liberate photons when electrons comes back to the ground level. Correct. So these emitted energies, when I'm plotting here on a spectrogram, I'll be getting an emission spectrum. Agreed? Agreed? Yes, sir. Sir, I do not understand. Very good. AJ101010. Now listen. I'm saying when I heated the hydrogen atoms, the electron in the hydrogen atom make a transition from lower to higher energy level. इतना समझ में आया कि नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे एनर्जी लेके. हाँ, उसके बाद जब वो नीचे आएंगे तो जब नीचे आएंगे तो फोटोन देंगे. जब हीट करना बंद कर दोगे तो नीचे आएंगे फोटोन देंगे, राइट? जब वो फोटोन दे रहे हैं तो वो फोटॉन्स क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज ही है ना. फोटोन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उनको तुमने प्रिज्म के थ्रू पास किया और उसको बेंड करवा के एक स्पेक्ट्रोग्राम के अंदर प्लॉट करवा दिया. उस स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं. एमिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज वो एनर्जी हाइड्रोजन एटम एमिट कर रहा है. कोई दिक्कत नहीं सर. वेरी गुड. सर वहाँ पे प्रिज्म रखना जरूरी है. क्या हम ऐसे ही उसको स्क्रीन पे नहीं डाल सकते हैं. ऐसे कैसे डाल दोगे? तुमको दिखेंगी थोड़ी ना लाइंस. हाँ, दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम. तुम कैसे डाल सकते हो? तुम्हें वो दिखेंगी कैसे? स्क्रीन पे कैसे डाल सकते वो डायरेक्टली हाँ, स्क्रीन तो उसके बेब में आता है ना, तो उसके पास में आएगा तो हिट करेगा और दिखेगा. अच्छा एक बात बताओ, सुनो. मेरे पास एक मीडियम होना चाहिए जिसमें मेरे को लाइंस दिखे. या तो कंप्यूटर बेस्ड एनालाइजर ले लो जो कि एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके प्लॉट करके दे दे तुमको.
या तो तुम एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लो जिसमें तुम्हें इंफ्रारेड भी दिखे, अल्ट्रा वायलेट भी दिखे और विजिबल भी दिखे, कोई दिक्कत। अगर कोई और स्क्रीन लोगे तो लाइट, विजिबल लाइट तो दिख जाएगी आंखों से, इंफ्रारेड कैसे देखोगे आंखों से? तो ये कौन सी स्क्रीन ली है हमने? रिवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुआ और तुम एक्समैन बन गए और तुम आईआर देख सकते हो। अल्ट्रा वायलेट कैसे देखोगे? उसके लिए दूसरा एवोल्यूशन चाहिए ना। हाँ, है ना। चलो बट ये हमने कौन सी स्क्रीन ली है फिर? हाँ, ये हमने फोटोग्राफिक प्लेट लिया। अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा, ये लाइन स्पेक्ट्रम है डिस्क्रीट, बिकॉज एनर्जी लेवल, एनर्जीज जो है उसमें काफी एनर्जी डिफरेंस है, तो अलग अलग एनर्जी अलग अलग जगह फॉल करेगी। ठीक है। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन फॉर व्हाट? करो ना, क्या है? नाउ लिसन एवरीवन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हाँ, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम। हाँ, टेट्राहेड्रन क्यों लोगे? डिफरेंस क्यों होगा एनर्जी में? डिफरेंस एनर्जी में इसलिए होगा क्योंकि सपोज करो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 10.2 हो सकता है, 12.1 हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज ऐड करते रहोगे, सबट्रैक्ट करते रहोगे, तो सारी एनर्जी सेम डिफरेंस थोड़ी ना देंगी। सपोज करो एक फोटोन इंफिनिटी से 3.2 लेवल पे आ रहा है तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। अगर वो 6 लेवल पे आ रहा है तो 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, 0.37 देगा। No, you cannot do the experiment without prism. How can you bend the lights? Dispersion कैसे होगा? Different energies bend कैसे होंगी? बात समझ में आई? तो एनर्जी सारी अलग अलग है। हाँ, डिफरेंस कैन बी स्मॉल आल्सो, नो डाउट। हर लाइन की डार्कनेस भी वेरी करेगी ना। हाँ, हर लाइन की डार्कनेस भी वेरी करेगी ना। हाँ, एक बात बताओ, डिफरेंस विल बी, कैन बी स्मॉल बेटा, डिफरेंस विल बी देयर राइट। किसी किसी में कम डिफरेंस होगा, किसी किसी में ज्यादा भी होगा। ज्यादा है ना तो कॉन्टिन्यूस रहेगा कि डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, बात ये है, क्योंकि बहुत सारी रेडिएशन में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा भी है। After what the supply of heat is stopped, हाँ, after heating the hydrogen gas sample, तब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तब मैंने हीट की सप्लाई रोक दी सम थोड़े टाइम के बाद। On what factor difference depend? Difference depends on the difference in the energies of energy radiation. अरे यार, तुम 10th की टीचर को क्यों ला रहे हो बीच में? ओके, समझ में आई बात? जब डिफरेंस होगा ना एनर्जी लेवल्स में तो ये होगा, एनर्जीज आएंगी। हाँ, तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहेड्रन भी यूज कर सकते हो, इनोवेशन लेके आओ तुम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एब्जॉर्प्शन करें, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, AGBR फोटोज बनाता था, वो भी सेम मैकेनिज्म से बनाता था, क्योंकि कोई भी एनर्जी लाइट उस पर फॉल करती है तो AGBR टूट के ब्लैक रेडिएशन देता है, ब्लैक लाइन बनाता है। Sir, the difference is the same as the difference in energy levels. Yeah, exactly. Obviously, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी रेडिएशन देगा ना। बोर्ड पॉजिटिव भूल गए क्या? अरे, photon is a energy, right? We discussed that thing in the Bohr model, that when it is coming from higher level to lower level, it can give various photons, and photon is nothing but energy only. IR, infrared radiation क्या होता है? हीट कॉज करता है ना, तो IR भी देता है ये, टेंशन मत लो, करेंगे अच्छी तरीके से। अभी मेरी बात सुनो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पता है क्या हुआ? मैंने क्या किया, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस सैंपल।
इसको फ्रीज करेंगे। अब तुम ना मुझको बताओ, मैंने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर लिया। फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या होता है? वो सारी एनर्जीज प्रोड्यूस करता है। तो अगर तुम एनर्जी डिफाइन कर दो, तो मैंने लेट्स से डिफाइन किया एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो वो क्या करेगा? हर एक एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। Exactly, it is an evidence that hydrogen spectrum is quantized. अच्छा सुनो, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मैंने इसको एनर्जीज दी। अगर मैंने इसको एनर्जीज दी, तो अंडरस्टैंड दैट आई हैव गिवन ऑल द एनर्जीज टू इट लाइक दिस। ये सारी एनर्जीज मैंने इसको ट्रांसफर कर दी, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन एटम सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब करेगा कि कुछ ही एनर्जीज एब्जॉर्ब करेगा? कुछ ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सारी तो नहीं करेगा ना। वो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 2 एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस वाली, जो कि एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस वाली होंगी। एग्रीड? क्या होगा? कुछ एनर्जीज एब्जॉर्ब हो जाएंगी और जो एब्जॉर्ब नहीं हुई ना, वो बाहर निकल जाएगी। दिस इज अनएब्जॉर्ब एनर्जी। अनएब्जॉर्ब एनर्जी, कोई दिक्कत? ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई ना, मैं इसको प्रिज्म के अंदर डाल रहा हूं। हाँ, मैं बताता हूं। मैंने इसको प्रिज्म के अंदर डाला। प्रिज्म के अंदर डालने के बाद मेरे पास एक स्पेक्ट्रम आया। वो स्पेक्ट्रम तुमको दिख रहा है? तो बैंड स्पेक्ट्रम होगा क्या? डिसकंटीन्यूअस बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम होगा। हाँ। होगा क्या? मेरे पास एक स्पेक्ट्रम बनेगा। पता है क्या स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? मेरे पास सारी लाइंस होंगी, सिर्फ कुछ लाइंस के, बिकॉज वो सारी लाइंस एब्जॉर्ब हो चुकी होंगी। Realme 3 बोलो बेटा, Realme 3 बोलो। ओके, सुनो मेरी बात। Just listen to me. What I did, I passed all the energies. इन सारी एनर्जी में से कुछ एनर्जी हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करेगा, सारी नहीं करेगा। वो वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो एनर्जी डिफरेंस की इक्वल होंगी। बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो मैंने पास करा प्रिज्म से। जब प्रिज्म के थ्रू पास करके मैंने दोबारा से स्पेक्ट्रम बनाया, तो स्पेक्ट्रम मेरा इस तरीके से बना। ध्यान से देखना, इस तरीके से बना। सुनो, इन सब में से सर वेयर डिड यू गेट द एनर्जी लेवल्स? व्हाट? बेटा हाइड्रोजन गैस में से हमने डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में। एनर्जी ऑफ NaCl इज इक्वल टू -13.6 into Z²/n²। वहां से एनर्जी लेवल्स आए मेरे पास। बोहर मॉडल। बेटा मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, उसको मतलब डिसोशिएट करके ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी जनरेटर में से मैंने एनर्जीज प्रोड्यूस करी है सारी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे सारी एनर्जीज होंगी, कुछ एनर्जीज को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी मिसिंग है, 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 फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी मिसिंग है।
फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी मिसिंग है। सो वो जो गैप्स है ना बीच में, वो कौन सी एनर्जीज के हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन 13.6 से ज्यादा दोगे एनर्जी तो उड़ के बाहर चला जाएगा एटम से, वापस कैसे आएगा? But lower is the energy of hydrogen atom become H2 will become H2. Yeah, see the thing is, yeah, but I'm keeping them in atomic level so that I can observe hydrogen atom spectrum. ठीक है, मैं कर रहा हूँ, वो मेरा एक्सपेरिमेंट है, वो मेरा कंस्ट्रेंट है। See, it is very simple to make it in gaseous state. There are a lot of catalysts which actually do that. ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ, वो जो एनर्जी मिसिंग है वो एनर्जीज किसने एब्जॉर्ब करी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने। ये जो एनर्जी दी है ये किसने दी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने। हाँ, तो जो एनर्जीज यहाँ पे आई हैं वो वहाँ पे मिसिंग है। अगर दोनों को मैं मिला दूं आपस में तो क्या बनेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी जनरेटर वाला। गेटिंग इट? हाँ, फ्रीक्वेंसी Continuous band spectrum. अगर मैंने इसको आपस में मिला दिया ना, आई विल गेट दिस। सर व्हाई विल हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब दैट एनर्जी? बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी लेवल्स के अंदर, तो एनर्जी लेवल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रुक जाओ बताता हूँ। एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जीज गेन करके ऊपर ट्रांजिशन मारते हैं, और फ्रीक्वेंसी जनरेटर एक ऐसी चीज है जो 0 से लेके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक सारी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करती है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसीज सारी एनर्जीज प्रोड्यूस करती है। तो कैटलिस्ट इंटरफेयर नहीं करेगा रीडिंग के साथ। बेटा देखो ऐसा है, ये मेरा लुकआउट है ना कि हाउ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एटम। See, the thing is, I can pass electricity inside that and can break into hydrogen atom, and then spontaneously for fraction of seconds I perform that reaction. मेरे ऊपर है ना, मैं experimentally so FG will give photons of all the frequency, continuous photons मिलते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अभी ये इसके अंदर और कोई डाउट है कि एब्जॉर्ब्ड और एमिशन कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है एक दूसरे के? मतलब एमिशन में जो लाइंस आ रही हैं वही लाइंस एब्जॉर्ब में मिसिंग होगी, इतना समझ में आया? पूरे एक्सपेरिमेंट में जो समरी है वो ये है, समझ में आया इतना? यस सर। हाँ एवरीवन, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एब्जॉर्ब होगा so sir, can you explain again? What to explain again? Tell me. What part? M010. Spectrum discontinuous band कैसे होगा? Why they are complementary? अच्छा सुनो, पहला क्वेश्चन, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अगर इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में से कुछ एनर्जी लाइन हटा दूं तो वो बैंड्स बनेंगे, बैंड्स के बीच में गैप होंगे, वो गैप आने के बाद मैं उसको डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलूंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज दी उसमें से हाइड्रोजन ने एनर्जीज ली, कितनी ली? एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। बाकी बची हुई एनर्जीज यहाँ जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, यहाँ पे मैंने हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो एनर्जीज दी। कौन सी एनर्जीज दी? जो एनर्जी लेवल के इक्वल थी। तो ये एनर्जीज एनर्जी लेवल के इक्वल है, और यहाँ पे जो मिसिंग एनर्जीज हैं वो एनर्जी लेवल के इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये वाला स्पेक्ट्रम और ये वाला स्पेक्ट्रम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। जो चीज यहाँ पे मिसिंग है वही चीज यहाँ पे अवेलेबल है। नो बैंडविड्थ यूनिफॉर्म नहीं होगी। हाँ, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस बैंड स्पेक्ट्रम। अरे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है अभी बताऊंगा। इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो डेफिनेशन होगा अभी जो लिखोगे वो लिखोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक्चुअल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे बनता है?
लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो भाई? म्यूट कर लो ना, म्यूट। या okay, now listen. Hydrogen spectrum. अब इसको समझने के लिए ना, what we will do, we will draw energy level. ऐसे करते करते इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। ठीक है, समझना इस चीज को। लेट मी रिफिल इट, राइट? हाँ भाई, okay. Now understand that this is energy level 1, this is energy level 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, and this is infinity. Okay. Now you tell me, what is the energy of energy level 1? minus minus 13.6 electron volt. Very good. Energy level 2? Minus 3.4. Energy level 3? minus Minus 1.5. 1.51. Wait, I'll do one thing. I want some extra space on this side. So I'll be taking that much area so that you'll understand. Spectra. (13.6), 3.4, 0.151, 0.85, 0.51, 0.37, 0.27, and there will be 0. And infinity it will be 0. Agree? Now Yes, listen, I have heated the hydrogen atom. The electron went to every level. You tell me, any electron which is present at infinite level. Now listen, any electron which is coming to the energy level 1, that particular collection of lines, whenever any electron from any level, when it is coming to n is equal to 1, that collection of lines or energy radiation is known as Lyman series. कौन सी series? Lyman, क्या बोलते हैं? Which series? Lyman series. Lyman series. Lyman series. Now listen, मैंने कहा, whenever any electron is making a transition from any level, कहीं भी ऊपर से पहले लेवल पे गिरता है, जब वो पहले लेवल पे गिरेगा ना, जो एनर्जीज देगा वो एनर्जीज की कलेक्शन को लाइमन सीरीज बोलते हैं। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ना पहले लेवल पे गिर रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? दूसरे से पहले पे, तीसरे से पहले पे, चौथे से पहले पे, या इंफिनिटी से पहले पे? ज्यादा एनर्जी का इंफिनिटी से पहले वैसे 0.16 से इंफिनिटी। देखो, अगर दूसरे से पहले पे गया तो डिफरेंस कितना है? 10.2। अच्छा, तीसरे से पहले पे गया तो 12.1। 12.109।
0.85 से 13.6 तक गया। तो जितना ऊपर से नीचे आऊंगा तो एनर्जी जो है फोटोन की वो बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब आएगी? इन्फिनिटी से n1 पे। तो तुमने कहा इन्फिनिटी से n1 पर इट इज लिबरेटिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? सबसे कम एनर्जी 2 to 1 n2 से n1। n2 से n1। उसके बाद n3 से n1। उसके बाद 4 to 4 1 to 1। उसके बाद 5 to 1। 5 to 1 6 to 1। 6 to 1 उसके बाद 7 to 1 7 to 1 7 to 1। इस सारे कलेक्शन को ना लाइमन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। Lyman series. मैक्सिमम एनर्जी कितनी? हेलो, मैक्सिमम एनर्जी कितनी? 13.6। 13.6। इंफिनिटी से जब पहले पे गिरा, मिनिमम एनर्जी कितनी? 10.2 10.2। तो जितनी भी एनर्जी रेडिएशन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ रही है, वो सारी एनर्जी रेडिएशन को क्या बोलूंगा? Lyman series. Yeah, YD01, you can unmute yourself and ask it out. अच्छा लिसन। हाँ बेटा। हेलो। ओके लिसन। हाँ लिसन, पहली लाइन अल्फा लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन बोलते हैं, दूसरी लाइन को बीटा लाइन बोलते हैं, तीसरी लाइन को गामा बोलते हैं, चौथी को डेल्टा बोलते हैं, देन सिग्मा और देन एप्सिलॉन। ये लाइंस के नाम है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अंडरस्टूड? तो अगर क्वेश्चन के अंदर अल्फा लाइन दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ? लाइमन सीरीज का n2 से n1 वाला। दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। विच लाइन? फर्स्ट लाइन। हाँ, और जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन, उसको लिमिटिंग लाइन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लाइन। तो लिमिटिंग लाइन इज इक्वल टू 1 to alpha, beta, gamma, delta, sigma, epsilon, and this is first line. This is second line, third line, fourth line, so on. You understood that? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now listen. कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकेंड शेल पे फॉल करे, सेकेंड शेल पे बाल्मर बामर सीरीज। कहते हैं। क्या बोलते हैं? बामर। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाले शेल से अगर सेकेंड शेल पे गिरे उसे बामर बोला जाता है। BALMER, बामर। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कब आएगी? इन्फिनिटी टू n2। इंफिनिटी से जब वो n2 पे फॉल करेगा हाईएस्ट, उसके बाद 7 से 2 पे जाए, उसके बाद 6 से 2 पे जाए, 5 से 2 पे जाए, 4 से 2 पे जाए, 3 से 2 पे जाए। फाइन। Now listen everyone. सर हम 7 के बाद इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि 8 शेल ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है एनर्जी। बीच में बेटा सर उनका बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा एनर्जी। अभी सुनो, मैक्सिमम एनर्जी कितनी इसके लिए? व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी फॉर बामर? बामर का मैक्सिमम एनर्जी कब आएगा? 3.4 इन्फिनिटी से n2। 3.4 इंक्रीज से n2 चलेगा। सबको पता है 3.4 आएगा। और मिनिमम n3 से n2। n3 से n2 कितना? 1.9। 1.9। इसको क्या बोलते हैं? बामर। बामर की पहली लाइन क्या है? n3 से n2 अल्फा। दैट इज अल्फा। दिस इज बीटा। This is gamma. Sorry, delta. This is, you understood? Naming sigma. Sigma. Now listen. Any electron coming from infinity or any level to the third level,
Pashir, yeah, something like that. Passion. Please explain Balmer series completely. Listen, Balmer series. Oh God. अच्छा, Balmer series. When I'll get Balmer series, when इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी ऊपर शेल से, इन्फिनिटी हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, कहीं से भी ना, जब सेकंड लेवल पे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, जब वो एनर्जीज देगा, उस एनर्जीज के कलेक्शन को बामर सीरीज कहते हैं. जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहले शेल पे आता है तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी सेकंड शेल पे आता है तो बामर. अब बामर का जो पहला लाइन होगा, बामर, बामर, BALMER, बामर, बामर, BALMER. इतने अजीब नाम यार, ये लोग हैं ना, लोग हमारी खुशी चाहते ही नहीं है. राम श्याम लग दे तो मैं भी खुश रहता. मैं क्या यही चाहता था सर. नहीं रखा तो सोचो ना, बाबूराव, राम श्याम, कितना अच्छा लगता है नहीं बोलने में. सर फिर हेरा फेरी हो जाती थी. व्हाट? फिर तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं, हेरा फेरी स्पेक्ट्रम हो जाता था. हाँ, जैसा भी है. Anyways, oh, then Hera Fairy would be a spectrum. No, so listen. Lyman, Balmer, Passion. Now, Passion का Balmer समझना है. पहली लाइन Balmer की होगी 3 से 2, दूसरी होगी 4 से 2, तीसरी होगी 5 से 2, so on. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन बनाया है इधर, छोड़ दो. इधर आओ, इधर. सबसे कम एनर्जी कहाँ, कौन सा? N4 से N3. N4 से N3. 0.67 के आसपास. 0.6 कितना आएगा? 0.6, 0.7 आएगा ना? 0.66. 0.66 to be precise. इधर 1.51. 1.51. Right? This is alpha, this is beta, this is gamma, this is delta. Hey, this is limiting. Limiting line for passion, limiting line for Balmer. अच्छा, उसके बाद ये passion हो गया. Lyman, Balmer, passion, and Bracket. then we have fourth level, fourth. I will leave fourth. 7 से 4, 6 से 4, 5 से 4. This is alpha line, beta line, gamma line. This is limiting line. तो minimum energy कितनी? N5 से N5 से N4. N4. 0.3. Maximum कितनी? 0.5. 8.1. Now listen. Very good. This is Lyman, Balmer, passion. नाम है इसका bracket. After that, the electron will make a transition from any level to the fifth level. क्या होगा? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. तो मिनिमम एनर्जी कितनी? 0. इधर 0.51. This is Lyman, Balmer, passion, bracket, fund. P silent है. Fund. ठीक है. This is alpha line, this is beta, this is limiting. And any electron falling from infinity to the 6th level, like this, it is known as Humphrey. Getting it? Now 0.1 to 0.37. This is alpha, this is limiting. Hey, सुनो, सबसे ज्यादा एनर्जी किस रेडिएशन की? Lyman. की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरा रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है, यूवी रीजन. उसके बाद Balmer.
बाम सर, दैट इज हम्फ्री डेवी वाला वही वाला। आई एम थिंकिंग आई एम स्टडीइंग हिस्ट्री अगेन। वेरी गुड सर N7 का नहीं होता? हाँ N7 का नहीं होता? नहीं होता, बस बहुत हो गया। लिसन, फिर इतने भी याद नहीं रहेंगे। N7 के याद यूवी के बाद क्या? बामर ना। तो ये जो बामर रीजन है ना, वो विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है, बट सारा विजिबल नहीं होता है। पता है, बामर के अंदर सिर्फ पहली 4 लाइंस विजिबल होती है। 4 लाइन तुम देख सकते हो, जिसमें जो अल्फा लाइन है ना, वो रेड कलर होता है। गेटिंग अ पॉइंट? जो अल्फा लाइन होता है क्या होता है? रेड कलर। अगर किसी ने तुझसे ये पूछा सेकेंड लाइन फ्रॉम द रेड कलर, तो वो कौन सी लाइन के बारे में बोल रहा है? सेकेंड लाइन फ्रॉम द रेड कलर। ऑरेंज लाइन नहीं, बीटा के बारे में नहीं। सेकेंड लाइन फ्रॉम द रेड कलर, अंग्रेजी समझो। दूसरी लाइन रेड कलर से गामा। तो वो गामा लाइन के बारे में बात कर रहा है। मतलब ट्रांजिशन कहाँ से होगी? 5 to या गेटिंग अ पॉइंट? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस रीजन एग्जिस्ट इन विजिबल रीजन, पहली लाइन रेड लाइन। और तुमको पता है क्या, ये जिनके अजीब अजीब नाम है बाद में, इंफ्रारेड, ये सब इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, समझ में आया? या इसको ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैंने स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने वाला। टाइम पड़ा है? हाँ, बहुत पड़ा। विल प्लॉट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर ऐसे शॉर्ट इंफ्रारेड रेज और लॉन्ग इंफ्रारेड रेज का रेंज क्या है? अरे यार, ये रटने वाले क्वेश्चन है, मैं भेज दूंगा वैल्यू, राइट। बट ये है कि लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन से एनर्जी में कम होता है, ठीक है? तो दिस विल कम अंडर मतलब हम्फ्री वाला आएगा क्या? मतलब फंड और हम्फ्री वाला जो भी है वो आएगा। हाँ, वो लॉन्ग इंफ्रारेड में आ जाएगा। थैंक यू अरे सर। मैं तो पूरा हट गया भाई, बिट क्या होता है। ऑल इज योर्स, टेक इट। अरे लिसन, हम वो बना रहे हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? स्पेक्ट्रम। हाँ, स्पेक्ट्रम। ग्राफ नहीं, सर आप एनर्जी लेवल्स का मैक्सिमम मिनिमम रिपीट कर सकते हो एक बार? एक मिनट बेटा, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुकना है ना, मेरे को एक बार स्पेक्ट्रम बनाने दो। हाँ बेटा बोलो। सर आप एक बार एनर्जी लेवल्स का मैक्सिमम मिनिमम रिपीट कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये होता मैक्सिमम का मतलब होता है इन्फिनिटी से नीचे आना, तभी सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी। अरे हाँ या ना तो बोल। हाँ सर। हाँ, तो लाइमन के लिए इन्फिनिटी वाली लाइन का एनर्जी 0, पहली लाइन का एनर्जी कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी कितनी आएगी? 13.6। हाँ, वही लिखा ना मैंने। और मिनिमम एनर्जी कितनी आएगी? जब मैक्सिमम ऊपर से नीचे है तो मिनिमम फर्स्ट के लिए क्या होगा? 10.2। अरे 2 से 1, ट्रांजिशन कौन सा होगा? 2 से 1, 10.2 तो होगा ही। वो आया कैसे? जस्ट एक ऊपर से नीचे आया, तो मिनिमम एनर्जी है। अच्छा, एक बात बता, समझ में आया? यस सर। तो लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा? लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन से आएगा? लाइमन का जो एनर्जी लाइंस आ रही है ना, उसमें से जो एनर्जी लाइन का मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, वो किस ट्रांजिशन से आएगा? इन्फिनिटी टू 1। 2 to 1। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है सर? 2 to 1। एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैक्सिमम ज्यादा वेवलेंथ। हाँ, तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? सबसे कम। N2 to N1। हाँ, समझा? फोर ऑफ देम, रुको यार, 4 इंफ्रारेड रीजन में है, ठीक है?
चलो अब ना स्पेक्ट्रम बना लें। मैंने क्या किया, इन सारी एनर्जीज को सर हम्फ्री कंट्रीब्यूटेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। यार देखो ना, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, इस चीज के लिए कि उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। बट अब चक्कर क्या है ना, हमको स्पेक्ट्रम बनाना है। विल डू दैट, राइट? तो पहले मुझे बताओ, इन सारी लाइंस को मैंने कहाँ से पास किया? प्रिज्म से। से पास किया। तो बेंडिंग होगी, बेंडिंग, राइट? बेंडिंग, यस सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी? अल्ट्रावायलेट। लाइमन या फिर हम्फ्री? लाइमन लाइमन सीरीज का रेंज क्या है? 13.6 to 10.2। 13.6 से 10.2, एग्री? तो एक काम करते हैं, सबसे नीचे कौन सी लाइन आई? लाइमन 13.6, राइट? 13.6 से लेट्स से ये 10.2 है, तो 13.6 से 10.2 के बीच में जो एनर्जी रेडिएशन एग्जिस्ट करेंगी, राइट, वो ऐसी होंगी। तो इस सीरीज को मैंने लाइमन सीरीज बोला। क्या बोला? लाइमन सीरीज। अंडरस्टूड? ये सारी एनर्जी रेडिएशन लाइमन सीरीज में आ रही है, ठीक है? अब एक बात बताओ, लाइमन सीरीज के अंदर ही ध्यान से बताना, ये 13.6 है, ये 13.6 है। 13.6 के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी आएगी वो कितनी होगी? इंफिनिटी से थोड़ा सा कम ले लू ना, थोड़ा सा कम, इसको छोड़ो, ये देखो जो सबसे नीचे एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है? 10.2 सर। 10.2। उसके बाद जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है? 12.9। ध्यान से सुनो, अब सिर्फ सुनोगे, अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अल्फा लाइन 3 से 2 जो भी आया, 3 से 2 आया 10.2, सॉरी 2 से 1 आया 10.2, 3 से 1 जो आया दैट इज 12.1। उसके बाद और लेके आओ तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 पॉइंट कितना, 12.8 के करीब, ठीक है? उसके बाद और लेके आओ तो 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग। जो पहले डिफरेंस है एनर्जीज के अंदर वो ज्यादा ही कम है। पहले 10.2 फिर 12.1, डिफरेंस 1.9 का है। हाँ, डिफरेंस 1.9 का पहले डिफरेंस 1.9 का, फिर डिफरेंस और कम हुआ, 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 दो लाइंस के बीच में। तो मैं जब प्लॉट कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा 10.2 वाला एनर्जी, 10.2 के बाद तुम्हारा 12.1 वाला आएगा, 12.1 के बाद तुम्हारा 12 कितना 13.6 माइनस 0.85 कितना होता है? 12.7। 12.7। उसके बाद 4.51 माइनस दिस 13.1। उसके बाद 12.1। 13.3 अप्रोक्सीमेटली। क्या बताओ, पहला लाइन 10.2, दूसरा 12.1, डिफरेंस 1.9, काफी बड़ा डिफरेंस। फिर डिफरेंस 0.6 का, फिर डिफरेंस 0.4 का, फिर डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव लाइन में 0.2 का। तो धीरे धीरे जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। जब डिफरेंस कम हो रहा है तो सेपरेशन बिटवीन लाइंस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डिफरेंस लाइंस के बीच में सेपरेशन रहेगा। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना तुम्हारा लाइनमेंट का, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ध्यान से देखना है। और जब फ्री बैठोगे ना एक्सेस के बाद, तो उसको सोचना, ये 10.2 है, 10.2 के बाद एक बड़ा गैप, फिर गैप छोटा, फिर और छोटा, फिर जो गैप है वो इतना छोटा होता जाएगा कि स्टार्ट ओवरलैपिंग विद ईच अदर। गेटिंग अ पॉइंट? तो पहले गैप बड़ा होगा, फिर गैप छोटा होता रहेगा। तो इट विल बी लाइक दिस। हम से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज लाइमन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइमन। मेरी बात समझ में आई कि पहले सेपरेशन ज्यादा है,
एनर्जी सेपरेशन ज्यादा है, फिर एनर्जी सेपरेशन कम होता जा रहा है जितना मैं दूर जा रहा हूँ। एग्रीड लाइंस के बीच में? यस सर। ये लाल पीलो हरे नीलो समझ में आया कैसे हुआ ये? Yes. यस सर। वेरी गुड। या अब दूसरा देखो, पामर दूसरा एनर्जी रेडिएशन है 3.4 से 1.9, दूसरा हायर एनर्जी रीजन बामर। तो बामर कहाँ डालूं? बामर कहाँ? बामर की हायर एनर्जी 3.4 है, लोअर 1.9 है। 3.4 और 10.2 के बीच में कुछ है क्या? बहुत ज्यादा गैप। बहुत बड़ा गैप, बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ। तो चले से दैट बामर मेरा करीबन यहाँ से स्टार्ट होगा बामर। हाँ सर। तो बामर अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो खत्म कहाँ पे होगा? 1.9 पे, और ये स्टार्ट कहाँ हुआ? 3.4 पे। नहीं, दिस इज बामर। एनर्जी कितनी है इसकी? 3.4। इसकी एनर्जी कितनी है? 1.9। अगेन 3.4 से 1.9 के बीच में जो गैप्स होंगे धीरे धीरे कम होते रहेंगे। दिस इज बामर रीजन। उसके बाद पैशन का एनर्जी बामर 1.9 पे खत्म हुआ, पैशन 1.5 पे शुरू हुआ। तो थोड़ा सा ही gap कम आएगा। होगा। तो ये पैशन है 1.5। कौन सा सीरीज? पैशन 1.5 से कहां तक गया ये? 0.66। तो अगेन जो स्पेक्ट्रम रहेगा दैट इज द स्पेक्ट्रम। उसके बाद क्या है सर? ब्रैकेट का एनर्जी कितना है? हायर एनर्जी 0.85। तो कहां से शुरू करूं? अगर 0.6 से ऊपर। यहाँ खत्म हो रहा है 0.85 कहां शुरू करूं? थोड़ा सा ऊपर। ऊपर की उसके नीचे? उसके नीचे। बेंडिंग ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा है तो चले से दैट पैशन से ओवरलैप शुरू हो जाएगा। हाँ सर। यस बामर 0.85 सॉरी फॉर दैट ब्रैकेट। सर फिर वो 0.85 से कहां तक क्या? 0.34 दिस इज ब्रैकेट। अंडरस्टूड? Yes, sir. उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आया? सर फंड सीरीज। हाँ सर फंड जो स्टार्ट हो रहा है 0.51 से 0.51 से 0.04। तो एक बात बताओ, 0.51 से 0.04, 0.51 आएगा कहाँ? उनके बीच में 0.34 और 0.66 के 0.54 के बीच में। तो ये हो गया तुम्हारा फिर से ओवरलैप। 0.51 और कहाँ तक जाएगा? ऊपर कहाँ तक? 0.14। तो यहाँ से फंड शुरू हुआ लाइक दिस इज फंड, सो ऑन। एग्री? दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले सेपरेशन ज्यादा, फिर सेपरेशन क्या हो रहा है? कम, फिर मोर और लेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। बट क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? दोनों सर। दोनों। ओवरलैप कैसे होगा? एक्सप्लेन करो बेटा। एक बात बता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, करेक्ट? अब इसका एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी 1.9 है, तो लोवेस्ट एनर्जी 1.9 है, तो ये 1.9 पे खत्म हुआ। इसका हायर एनर्जी 1.51 है, तो 1.5 1.9 से कम है ना, तो इसका बेंडिंग कम होगा, तो 1.5 1.9 से ऊपर एग्जिस्ट करेगा। मैंने 1.5 1.9 के ऊपर बना दिया। 1.5 से 0.66 तक मैंने स्पेक्ट्रम बना दिया। उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो रहा है 0.85 से, जहां पे खत्म हो रहा है 0.66 पे, उससे पहले 0.85 आता है। तो एक बार मतलब 0.85 0.66 से ज्यादा एनर्जी है ना, तो 0.85 का बेंडिंग 0.66 से ज्यादा होगा, मतलब 0.85 0.66 से नीचे गिरेगा। तो 0.85 0.66 ऐसे ही नीचे गिरा, तो दोनों रीजन में क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। तो 0.85 से 0.34 तक लिया
और ओवरलैप करवा दिया। सिमिलरली ये 0.34 पे खत्म हो रहा है भाई साहब, और ये 0.51 से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली 0.51 0.34 से नीचे गिरेगा, ये 0.34 आ गया, 0.51 आ गया, 0.51 से 0.14 तक मैंने स्पेक्ट्रम बना दिया। तो एक बात बताओ, ओवरलैपिंग मैं कह सकता हूँ ना पैशन से शुरू हुई है, है ना? तो ये पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, और ये कैसे बना? बाय ऑल द नॉलेज विच वी कंबाइंड इन दिस लेक्चर। स्पेक्ट्रम से शुरू किया, स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया, कैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है वो एनालाइज किया, हाइड्रोजन के अंदर एनर्जीज एनालाइज करी, हाइड्रोजन के अंदर सब कुछ एनालाइज किया, एंड देन वी प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? हमने सिर्फ वही लॉजिक्स डाले जो हमने अभी पढ़े थे। सर ये बहुत उलझा हुआ है। हाँ, बहुत उलझन है सर। उलझन क्या है? नहीं सर, बहुत ओवरलैपिंग है इसमें। हाँ, उलझन मतलब ओवरलैप। हाँ, ओवरलैपिंग पैशन से शुरू होती है, बट चक्कर क्या है, कोई भी एनर्जी है ना इक्वल नहीं है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के साथ फॉल नहीं करेगा, सारी एनर्जी लाइंस अलग अलग एनर्जीज की है, तो सेपरेशन होगा, तभी इसको डिस्क्रीट बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। सर ना जवाब दे, डिस्क्रीट बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूस बोलेंगे? कंटिन्यूअस बैंड नहीं, गैप के बीच में डिस्क्रीट है ना, क्योंकि गैप्स है। हाँ, लाइन स्पेक्ट्रम है और गैप्स है। डिस्क्रीट, डिस्कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। हाँ, अब बेटा तो कुछ पूछ रहे थे, बोलो। पर सर इन एनर्जीज का क्या यूज है? वेरी गुड बेटा, एग्जाम में आता है, जेई एडवांस में आता है, जेई मेंस में आता है, पूछते हैं कि कितनी एनर्जीज आई हैं, कितने फोटॉन्स आए हैं, कितने लाइंस मिलेंगी। गेटिंग अ पॉइंट? ओके सर। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो अभी रब करूं? यस सर। हाँ सर। वैसे फायदा नहीं है रब करने का, पूछो क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बाकी है क्लास खत्म होने में। हाँ, 4। सुनो, ओ मेरे लाल पीलो हरे नीलो, चलो अब शायद एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी हिसाब से। सर बट यार फील नहीं आएगी, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर। कंफ्यूज हो जाओगे, आधा अधूरा काम अच्छा नहीं लगता, ठीक है? यू आर राइट सर। यू आर राइट सर, बॉन्ड बन रहा है। लिसन, तो टेल मी, हाउ मी डी डू सर? क्या हाउ मी डी डू सर मतलब? होमवर्क दे दो सर। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास वो पीडीएफ है ना, कलरफुल पीडीएफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का? यस सर। उसमें बोहर मॉडल तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक बताओ। मैं एक काम करता हूँ, अभी सर को बोलता हूँ, सर डाल देंगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जहाँ तक स्पेक्ट्रम चल रहा है ना, वहां तक जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करना है। ओके सर। हाँ सर, इसमें जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो? है ना क्वेश्चंस? क्वेश्चंस है हर लेक्चर के बाद, कहीं ना कहीं तो है, आईसीई वगैरह वगैरह है। होंगे यार, होंगे, ऐसे ना सर है। इसके बेस कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा? भेज देता हूँ मैं। नेक्स्ट कल है ना, कल इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। मैं बता रहा हूँ, पूरा 1.5 लेक्चर सिर्फ इसके क्वेश्चंस में जाएगा। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 1.5 घंटा सिर्फ इसके क्वेश्चंस में जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लो, कल इसके साथ। हाँ व्हाट? सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि प्रीवियस भी जो सारे असाइनमेंट्स हैं इसको इंक्लूडेड, वो आप क्वेश्चंस और भेज सकते हैं क्या, या सारे सिर्फ उस पीडीएफ में इंक्लूडेड है? नहीं नहीं, सुनो, मैंने तो एक्स्ट्रा पीडीएफ सेंड करी है ना, और उस पीडीएफ में तो ऑलरेडी क्वेश्चन प्रेजेंट है ना। हेलो, हाँ जी सर मैं ज्वाइन हुआ तो मेरे पास प्रीवियस पीडीएफ्स नहीं है। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ, अनूप जी को भेज देंगे तुमको, ठीक है? सर उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो पीडीएफ पे चल रहा है। हाँ पता है मुझे,
पता है वो पीडीएफ अच्छा ही होता, वो जो सॉल्व क्वेश्चंस वाले भेजे थे पीडीएफ सॉल्व किए उसको। हाँ सर। यस सर कैसा लगा? दिमाग खुला उसको सॉल्व करने के बाद? हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा खुला? हाँ थोड़ा खुला सर। थोड़ा खुला मतलब सर जो क्वेश्चन सर जिन सिलेबस डाउट्स थे वो है। हो गए जो हाँ मतलब डाउट सेशंस हैं तुम्हारे, क्वेश्चन में डाउट्स है सर। डाउट सेशंस हैं तुम्हारे उसमें, ठीक है। तुम्हें सर पता कब लग होगा? जाएगा डाउट आपका। आई गेस कल होगा। कल एक्सटेंड करेंगे? दिमाग को खोलने वाली चीज है, खराब वाली नहीं है। हाँ? क्या सर क्या कल बोले? एक्सटेंड मतलब सबके क्लास होने के बाद रखोगे या केमिस्ट्री को एक्सटेंड करेंगे? नहीं, सब्र करो यार। वी विल एक्सटेंड केमिस्ट्री अ बिट, ठीक है। ओके सर। चलो और कुछ? नहीं। Nice, sir. थैंक यू सर, बाय बाय। बाय चलो सर। Thank you, sir. बाय Bye. सर, थैंक यू अरे सर। हाँ यार, हैव अ गुड डे सर। Thank you, sir. Bye. ओके ओके, you cannot disconnected. Okay, who is taking care of this group? I guess रोहित जी आप देख रहे हो ग्रुप? यार ये अजीब हो गया। बेटा तुम्हें किसने ऐड किया था? होस्ट कौन था जब तुम आए थे यहाँ पे? झील पनवेल था तब। हाँ झील पनवेल। झील रोहित पनवेल। सर से था। रोहित सर थे सर। रोहित सर थे ना? चलो टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर।